We will be starting the session in 5 minutes. Please tell your friends to join so that we can start the session on time. Yeah, hello guys, Bharat here. Am I audible? Yes, sir. Yeah, Jayesh, are you there? Yes, sir, I'm there. We'll start in 2 to 3 minutes. Then we can go ahead. So, good evening, everyone. I hope you all are excited for this session. I am Shreya Chakravarti, and I am thrilled to welcome you all to the prerequisite session for our DSA bootcamp
organized by the Google Developer Group on campus, DVIT. Before we dive in, let me briefly highlight why data structures and algorithms are so important. DSA, as you all know, is the backbone of problem solving in computer science and plays a critical role in technical interviews. It helps you think logically and efficiently while solving real world problems, which is exactly what companies look for in candidates. It also enhances your coding skills and analytical thinking. This bootcamp will help you strengthen these foundations and get a head start on building skills that will be beneficial in your technical journey. We are lucky to have Bharat sir with us today. Mr. Bharat Kumar Bhandari is the head of training and placement cell at DBIT. Good evening, sir. I request you to kindly speak a few words. Yeah, good evening, one and all. Bharat here, TPO, Don Bosco. So, guys, this is a very important session, DSA. Why important? I'll tell you. More or less, majority of the companies which come, they ask lot of questions on DSA. But why we should learn DSA more, or why we should do our basic strong in DSA is if you want to have a higher package. Now, the basic minimum pay package, which for a IT company which starts is around 3 lakhs. But if you want to aim for a package of say more than 5 lakhs, okay, then DSA should be very, very strong. Even for a package of 3 lakhs, DSA is asked. But then for a package of 5 lakhs and above, there are a lot of questions which are asked in DSA. So take example of HSBC Bank that we have got. HSBC Drive is going on right now, and in the HSBC Drive also, the package is 13 lakhs, and majority of the questions are being asked on DSA. So that is the reason we have to prepare a lot on DSA, topics. So I would request each and every one of you that if you make your basics very strong in DSA, then the probability of you landing up with a higher package would be on a higher side. And that is the reason this workshop which is being conducted by the our Google developer team is something really essential, and everybody should really benefit out of it. And everybody should not just for the sake of having a certificate. It's not the motto out here. The motto is to learn, and learn as much as you can, because the more you learn, the more you are going to get insights, and it will be more helpful to you. So whether you are a student from first year, second year, or third year, you should give a lot of importance and lot of DSA. So I would request each one of you to completely have attention whenever the workshop, whatever is being conducted. Just make sure that you are dedicating your full attention and you are learning a lot. Yeah. So that's all from my end. Thanks a lot for the opportunity to have me here. Thank you. Thank you so much, sir, for explaining the significance of DSA. Now, to kick things off, we are happy to have with us one of our talented final year students from batch 2025, Aril D'Souza, who has recently secured a job offer at Nvent. Aril is not just an exemplary student, but also an accomplished programmer. He is a 3-star coder on CodeChef and has achieved a max rank of pupil on Codeforces. Last year, he also served as a DSA expert for GDGC, where he guided many students on their learning journeys. He'll be sharing his inspiring story and emphasizing the role of DSA in cracking placements and interviews. We are excited to hear about your journey. Over to you, Aril. Hey guys, my name is Aril D'Souza. So as you all know, I was last year's GDSC DSA expert. So I am not really a hardcore DSA fan. I am a competitive coder, so I have not really delved in deep with lead code problems. I've worked more towards Codeforces and CodeChef problems. So
in my placement journey, I didn't really go for any sheets as such, which I would not recommend going for DSA sheets. But since this is a 40-day challenge, I think it's best you delve into DSA sheets. Striver's DSA sheet would be the best sheet I would suggest. So I think this course is the best way for you to kick off your journey in DSA. It has helped me last year as well because I was not very clear with concepts. I had been very up and down in terms of problem solving. I never really understood how to work towards solving a problem. I was just randomly solving problems. But I think with the way DSA challenge works, the DSA 40-day challenge is that you learn concepts and you apply those concepts towards solving problems. So I think it would be best if you contribute your best and maintain consistency towards this challenge. I know 40 days is quite tough to maintain, but trust me, maintaining those 40 days would benefit you overall. It's not easy to complete DSA within 30 days. If you have that mindset, then I think you need to clear that mindset right now. It's best if you start as soon as possible, especially if you are in your third year. It's best if you start right now, because when you get to June, it gets very difficult because there are a lot of concepts to cover. You have arrays, strings, two pointers, sliding windows, and the list goes on. If you really want to, and I think the best thing is that you should strive to get an offer as soon as possible, because the competition starts getting hotter as the placement season moves forward, especially in the month of September onwards. It starts getting hotter because everyone starts becoming very very serious. So if you can bag a package before that, it would be best for you. And the best way to do that is getting your technical skills in sync. So for me, when I was preparing for my placements, uh, I was not really doing much other than a DSA sheet, because I think that's the best way to go forward for on-campus placements, is to complete the DSA sheet. So I particularly took up the A to Z challenge of Striver's DSA sheet. um, I would suggest you do the same, but I would suggest you do it right now with the 40-day challenge. I think you have a fantastic DSA experts over here in this year. So through their guidance, I think it would be very helpful for you to learn these topics first and then start applying. So when I actually was preparing for Envent, it was more problem solving than DSA, because we had an online assessment. In the online assessment, it was partitioned into 50 MCQs and two DSA questions. So the DSA questions were pretty straightforward. One of them was a linked list question, and the second one was a binary search on answer. The binary search on answer is not a very typical question you'd see in DSA. It is something you'd find in competitive programming. So I would suggest you also kind of dabble into a little bit of competitive programming if you really want to uh, secure your chances. Further on, when you go into your personal technical rounds, when you have an interview in front of you, you don't really have options to choose your data structures. But I was given an option wherein my interview was straightforward: what data structures you want to work on. So I gave them an option that I'm open to anything, since I was really well prepared. And I got asked questions on linked list. I got asked questions on binary tree, binary search tree. So I think there there lies the problem solving aspect. You don't really have nobody's going to ask you, find maximum sum in a subarray or something like that. They will always give you a story, and you have to kind of understand that story, analyze the key observations in it, and then build towards a solution. I think that's the way to go. So that's all from my part. I would suggest everybody to be very consistent throughout this 40-day challenge. Even I will be trying my best to attend this challenge and maintain that 40 days. Over to the DSA team. Thank you so much, Aril, for sharing your experience. Your journey proves that dedication can truly lead to success. Now, to help you chart your own journey, we have our DSA experts from GDGC. They will guide you through the roadmap for this bootcamp, the topics we'll cover, and how this program will help you. Now, I call our DSA experts Narendra Dukhande and Sanjay Yadav, third year students from IT and Computer Department. Let's hear from them what's in store for you in this bootcamp. Over to you, Sanjay. So, hello everyone, my name is Sanjado and I'm going to start the session. And after me, Narendra will carry out the rest of the part.
And if you have any doubts during the session, you can ask me after the completion of the current concept, or you can put it on the chat box. So now I'm going to discuss some basic topics like data types. Means what is the data types. इसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं. So variables like entity in the programming which changes time to time according to the operation and other things. So uh, Hello, Sanjay, you are not audible, I guess. hello, hello, Yeah, now hello. you're audible. हाँ. तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और उसके पहले हम ये जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह है जो कि प्रोग्राम के थ्रू आउट ऑपरेशंस और प्रोसेस के थ्रू चेंज होता रहता है. तो वेरिएबल्स क्या है, एक कंटेनर है जो कि मेमोरी में होता है. तो जैसे कि कोई एक वेबसाइट है, जैसे कि एक नाम है यूट्यूब. तो यूट्यूब यूट्यूब उस मतलब एक आईपी एड्रेस का नाम है, क्योंकि आईपी एड्रेस हम नहीं याद रख सकते हैं. वैसे ही कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है हम उसको नहीं याद रख सकते, इसके लिए हम लोग उसको वेरिएबल्स के नाम दिए जाते हैं. तो जैसे कि यूट्यूब होता है जो किसी आईपी एड्रेस को पॉइंट करता है, वैसे ही वेरिएबल्स के नाम होते हैं या वेरिएबल होता है जो कि एक एड्रेस को पॉइंट करता है, जहाँ पे हम लोग कोई भी एंटाइटी जैसे कि इंटीजर हो गया या वगैरह स्ट्रिंग वगैरह हो गया उसको स्टोर करते हैं. तो वेरिएबल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि उसका खुद का नाम हो सकता है, उसके कुछ सिंटैक्स होते हैं, सिमेंटिक्स होते हैं. तो उसी तरह हमें उसके नाम रखने हैं. एंड देन उसके कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट हो गया, इंटीजर हो गया. जैसे कि इंट हो गया, इंट मतलब कि जैसे कि कोई भी इंटीजर वैल्यूज हो गई उसके ऊपर, और जैसे कि स्ट्रिंग हो गया वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होते हैं. देन हर एक इंटीजर्स के कुछ पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, जैसे कि कुछ अपर बाउंड होंगे, कुछ लोअर बाउंड होंगे. तो वैसे वैल्यूज वैल्यूज होते हैं. और उसके बाद उसके कुछ स्कोप्स होते हैं. स्कोप जैसे कि अगर अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, तो अगर समझ लो यहाँ पे मैंने एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, तो उसके अंदर यहाँ पे कुछ पार्ट्स होंगे. तो यहाँ पे कुछ वेट. सो एक सेट ऑफ प्रोग्राम में कुछ डिक्लेरेशंस होती हैं, कुछ फॉर लूप्स होते हैं, या कुछ फंक्शंस होते हैं. तो वेरिएबल्स के स्कोप्स कैसे हैं, अगर वो आउटसाइड द एनी फंक्शंस लिखे हुए हैं तो वो ग्लोबल स्कोप्स में चले जाते हैं, और अगर किसी फंक्शन या किसी लूप्स के अंदर लिखे हुए हैं तो वो एक लोकल स्कोप में जाते हैं. और ये अभी हम लोग फंक्शंस और लूप के बारे में बाद में बातें करेंगे, तो वहाँ पे समझ में आएगा कि स्कोप क्या होता है इसका. फिर एक लाइफ टाइम होती है. अगर जावा में डीएसए वगैरह करते हैं तो उसमें एक जावा का गार्बेज कलेक्टर होता है. जैसे कि अगर किसी अगर वेरिएबल को हम लोग यूज कर रहे हैं और उसका काम खत्म हो चुका है, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, उसकी उसकी जो मेमोरी है वहाँ पे जो भी वैल्यूज पड़ी है उनको साफ करके उसको अवेलेबल करा देता है नेक्स्ट प्रोग्राम को यूज करने के लिए. तो उसके बाद दो दो एग्जांपल दिए गए हैं कि इंटीजर को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, और एक स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर किया जाता है. ऐसे हम काफी सारे एग्जांपल्स आगे और देखेंगे कि कैसे कैसे चीजों को इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे क्या सिंटेक्स होते हैं और किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं. तो ये सेशन में हम लोग सिर्फ एक रॉ ओवरव्यू समझेंगे कि चीजें क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे होती हैं. तो इस सेशन में ऐसे ही इसी तरह की हम चीजें कवर करेंगे जो आपको एक वाइड वाइड एंगल से सोचने का, मतलब एक ब्रॉड एंगल से सोचने का एक मतलब एक्सपेक्ट रखने का एक व्यू देगी. तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अभी. अब देन जो मैं पहले बताया था कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो एक लोकल वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है. तो लोकल वेरिएबल कैसा, किसी फंक्शन के अंदर, एंड ग्लोबल वेरिएबल मींस आउटसाइड द एनी फंक्शन, या इन द आउटसाइड द एनी फंक्शन या आउटसाइड द एनी ब्लॉक ऑफ कोड. देन
इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं एंड देन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जैसे कि हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या इनिशियलाइज करते हैं तो वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है। एंड स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो किसी न किसी क्लास से बिलोंग करता होगा, तो वो क्लास के एसोसिएटेड होता है। मतलब वो जैसे कि हमने एक क्लास बनाई है जैसे कि टिकट रेलवे कंफर्मेशन, तो उसमें अगर हमको हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि हर एक कस्टमर का हम लोग को वैल्यू स्टोर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्टेंस कॉल करेंगे उसका और उसको इनिशियलाइज कर देंगे उनके नाम से, उनके जो आईडी प्रूफ रहेंगे उससे। बट अगर हमको काउंट करना है कि कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे इनिशियलाइज हो चुके हैं, तो वहां पे हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे टिकट मतलब इनका टिकट ले चुके हैं या कुछ हो चुका है उनके साथ। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं क्लास के साथ, एंड इंस्टेंस वेरिएबल आ रहे होते हैं जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर इसके बाद दो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या डेटा टाइप्स है, जिनको हम थ्रू आउट द 40 डेज हम लोग यूज करने वाले हैं, या जिनके साथ हम लोग कुछ भी ऑपरेशंस करने वाले हैं, और जो कि यही पूरे डीएसए का एक समझ सकते हो कि एक बेस है या फाउंडेशन टाइप है। तो फर्स्ट है एरे। एरे क्या होता है, एक होमोजीनियस एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। तो होमोजीनियस एलिमेंट का कलेक्शन होता है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि उसके इंडाइसिस होंगे, उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनकी कुछ लेंथ होगी। तो जो बाकी लेंथ वगैरह ही है तो उसके फंक्शंस है या प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं एरे क्या है। तो एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉन्टिजिनियस कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट इन अ कॉन्टिजिनियस मेमोरी। मीन्स इसको हम लोग कंटिन्यूस, अगर हम लोग कोई एक लेन है, रोड है, तो उसमें जैसे कि हर एक शॉप्स या घर एक लाइन लाइन से होते हैं ना, तो उसी तरह इसमें भी होता है कि मेमोरी में जहाँ पे ये एलोकेट किया जाएगा एरे, वहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस बिहेवियर सीक्वेंस में रहेंगे। एंड देन स्ट्रिंग होता है दूसरा डेटा टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो क्या होता है, हर एक कैर मतलब कैरेक्टर या लेटर कह सकते हो, तो हर एक कैरेक्टर या लेटर का कॉम्बिनेशन से बनता है। सो स्ट्रिंग को कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स भी कह सकते हो, कि स्ट्रिंग को कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स भी कह सकते हो। और एक और बात इसमें अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि एक और स्ट्रिंग के टाइप्स होते हैं जो कि इसको और बेहतर बनाते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग्स जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, और ये जो इम्यूटेबल वाली प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कंपैरिजन करते समय। सो स्ट्रिंग्स की जैसे कि हमने एरे की प्रॉपर्टीज की बात की, जैसे कि कुछ इंडाइसिस होती है, उनके पास कुछ साइज होता है, कुछ लेंथ होता है, वैसे ही होता है। जैसे कि स्ट्रिंग का 10 का बना है तो उसकी होगी एंड देन उस डाइसिस ऑन द जीरो इंडाइसिस में, और फिर मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में हर एक चीजों के एरे के और स्ट्रिंग के जो इंडाइसिस होते हैं जीरो बेस्ड रहते हैं, तो मतलब जीरो से शुरू होगा, और जैसे कि अगर n लेंथ का है तो n-1 इंडेक्स तक खत्म हो जाएगा वो। सो ये था एरे जो कि होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर करता है, और स्ट्रिंग था जो कि एक क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को स्टोर करता है। एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि कैसे कि हम ये वेरिएबल्स को यूज कहाँ करेंगे, जैसे कि हम कुछ स्टोर करना हो, जैसे कि हमको कुछ स्टोर करना हो या मैनिपुलेट करना हो डेटा को डायनेमिकली। जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया, जैसे कि अभी हम लोग एक किसी कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हमने एक एज ले रहे हैं, ठीक है, किसी आदमी की एज ले रहे हैं, उसने लिखा 18 ईयर, एंड देन आफ्टर 1 ईयर वो जो एज है उसकी वो तो बदलती रहेगी, बिकॉज ये ग्रोथ होता रहेगा या प्रोग्रेस होता रहेगा, तो वो चीजें बदल रही है ना, तो जो प्रोसेस के साथ या ऑपरेशन के साथ टाइम के साथ बदलती रहती है वो वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप्स होते हैं, तो इस डेटा टाइप्स का यूज वहां पे होता है कि चीजों को स्टोर करते रहना जो कि डायनेमिकली चेंज होती है। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो रियूजेबल होते हैं, अगर समझो आपने किसी और चीज से इनिशियलाइज किया है तो आप बाद में किसी और चीजों से इनिशियलाइज कर सकते हो। अब इसके बाद जैसे कि अभी हमने दो वेरिएबल्स है, जैसे कि अगर जैसे कि एक कोई क्राइटेरिया वाला एप्लीकेशन होता है जहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होती हैं, जैसे कि एज पूछने की, जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो, तो अगर आप ड्राइविंग के लिए एलिजिबल हो तो वहाँ पे पहले आप तो अपना एज डालोगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, वो अपने आप एज कैलकुलेट करेगा, देन वो किसी दूसरे एक वेरिएबल से कंपेयर करेगा, बरोबर, या फिर कुछ कैलकुलेशंस करेगा, बरोबर, तो उसको कंपैरिजन करने के लिए भी वेरिएबल को वेरिएबल से ही कंपेयर किया जाएगा, तो वहां पे भी आपकी जो डेटा है या स्टोर कराने के लिए वहां पे यूज वेरिएबल।
देन और भी अगर डेटा टाइप्स के बारे में आपको और भी जानना है तो उसके बाद ये आता है कि जैसे कि जावा के डेटा टाइप्स और जावा के सी प्लस के डेटा टाइप्स। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप और आगे एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहते हैं जो कि थ्रू आउट द 40 डेज आपको एक अच्छी एक्सपेक्ट सोचने के लिए किसी भी प्रोग्राम को लिखते समय या कोई प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट सोचते समय काम आएगा। एंड इसके बाद एक और पार्ट आता है जैसे कि आता है कास्टिंग। तो इसके लिए हम लोग इस पे क्लिक करके जाएंगे कि जावा के डेटा टाइप्स क्या होते हैं। So wait for a minute. तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। अभी जैसे कि अभी अभी कोई जैसे कि एक वेरिएबल है जैसे कि इंट है, तो एक इंटीजर है उसकी एक कोई अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड होता है। वैसे ही जैसे कि एक कोई इंटीजर है, इंट है तो उसकी अपर बाउंड लोअर बाउंड होती है, वैसे ही लॉन्ग की अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड होती है। तो जो इंट है उसकी जो बाउंड्स है मीन्स वो बहुत छोटी हैं और जो लॉन्ग है उसकी बाउंड्स बड़ी हैं। तो इसी तरह के कुछ कुछ डेटा टाइप्स हैं जो सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं बट उनकी रेंजेस अलग अलग हैं। और वो हम कैसे यूज करते हैं, उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई डेसिमल वैल्यूज यूज करनी है तो हम लोग इंट यूज करते हैं, अगर ज्यादा बड़ी डेसिमल वैल्यू है तो हम लोग देन लॉन्ग यूज करते हैं। और उसके साथ ही साथ जब अगर कोई फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट मतलब क्या होता है जैसे कि डेसिमल्स में मतलब पॉइंट्स वाली होती है ना, 3.25 एंड समथिंग। एंड जब हम लोग को उसके मतलब जो लास्ट के पॉइंट्स के बाद के जब नंबर होते हैं वो जब ज्यादा बढ़ जाते हैं उनको बहुत प्रिसाइजली चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम लोग डबल का यूज करते हैं बिकॉज डबल का जो बाउंड है या रेंज है वो ज्यादा बड़ा है। तो इसमें आता है टाइप कास्टिंग। जैसे कि अगर हम लोग को समझ लो कोई एक इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर है तो हमको उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो उसको ही कहा जाता है कि टाइप कास्टिंग करना। मतलब उसका डेटा टाइप इंट था, हमने उसका डेटा टाइप चेंज करके क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो इसमें दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो जो इम्प्लिसिट कास्टिंग है वो तो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई 5 लीटर की बकेट है उसमें वाटर पड़ा है, तो अगर 10 लीटर की बकेट में हम लोग वो वाटर डालेंगे तो आसानी से चली जाएगी। लेकिन जब हम लोग 10 लीटर की बकेट के वाटर को हम लोग 5 लीटर की बकेट में डालेंगे तो उसमें एक मतलब एक्स्ट्रा वो करने को तो पहले तो मना करेगा, जैसे हमारा प्रोग्राम है या तो फिर जो हमारा कंपाइलर होता है वो मना करेगा, लेकिन हमको फिर भी करना है तो हम लोग कुछ कीवर्ड्स को वगैरह का यूज करके वो एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं। सो इसको एक और नाम है जैसे कि मैंने पहले वाला बोला इम्प्लिसिट, वो उसको कहा जाता है नैरो कास्टिंग। वाह, ये एक्चुअल में जिसको मैंने बाद में बताया जैसे कि इंट से लॉन्ग में गया, मतलब इंट से लॉन्ग में गया तो उसको कहते हैं वाइड कास्टिंग। और जो अगर लॉन्ग से इंट में आया मतलब 5 लीटर की बकेट से 10 लीटर में आया तो उसको कहते हैं नैरो कास्टिंग। जैसे कि किसी भी इंटीजर, इस कैसे भी कोई भी इंटीजर को अगर मैं लॉग में करता हूँ तो उसके पास पहले से बाउंड है जो कि अवेलेबल है इंट के अंदर, वो उसके अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको लॉन्ग के अंदर जाना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइड कास्टिंग में चला गया। एंड इफ हाँ वाइड कास्टिंग। एंड इफ कोई ऐसा है जैसे कि रेंज की वैल्यू जैसे कि 10 लाख की रेंज की वैल्यू और कोई एक डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ 1 लाख तक की वैल्यू आप रख सकते हो, तो उसमें आ गया नैरो कास्टिंग। इस तरह तो ये दो टाइप की कास्टिंग्स होती हैं। एंड देन ये टॉपिक कवर होता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड देन उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड देन दो मेन डेटा टाइप्स कौन से हैं एंड देन उसके टाइप कास्टिंग क्या होता है। अगर इस पे कोई भी मतलब डाउट वगैरह है तो डायरेक्टली पूछ सकते हो अभी, और या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दो। देन हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कि टाइप्स ऑफ लूप। तो चाहे कोई भी किसी भी तरह के आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ले लो, चाहे सी प्लस प्लस में ले लो या जावा में ले लो, हमारे पास दो तरह की टाइप कास्टिंग्स आती हैं। अरे दो तरफ के लूप्स तीन तरह के लूप्स आते हैं जो कि होता है फॉर लूप, देन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो तीनों में सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसा होता है। जैसे कि अगर समझ लो जैसे समझ लो हमारे पास 10 बार हमको किसी भी पॉइंट कोई भी एक जैसे कि एक वर्क है परफॉर्म करना है, तो जो फॉर लूप है वो 0 से लेके एन तक परफॉर्म करेगा अगर हमको एन तक परफॉर्म कराना है तो। और अगर व्हाइल लूप है वो भी 0 से लेके एन तक परफॉर्म करेगा, बट डू व्हाइल लूप ऐसा है कि जो 1 से लेके एन तक परफॉर्म करेगा।
अब इसमें ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज जो फॉर लूप है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंपोनेंट होता है कंडीशन, तीसरा कंडीशन है अपडेशन। इनिशियलाइजेशन में पहले हम लोग किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं एंड देन उसका कंडीशन चेक करते हैं, और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन हम लोग अपडेट करते हैं। अब इसमें इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और कंडीशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर अपने एप्लीकेशन को ये नहीं चाहेगा कि वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहे और उसका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। इसके लिए हम चीजों को इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया जाता है कि इसको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे खत्म करना है चीजों को। सो तो जब से फॉर लूप और व्हाइल लूप का जो मोटिव है उससे एकदम एग्जैक्ट क्लियर है कि वो सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन चेक करेगा, देन परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, जैसे कि प्रिंट कर रहे हैं हम लोग आई को, देन अपडेट करेगा। एंड देन व्हाइल लूप में वो भी इनिशियलाइज किया हमने बाहर की तरफ एंड देन उसको प्रिंट किया, देन अपडेट किया। बट डू व्हाइल लूप में कैसा है, वो पहले इनिशियलाइज करता है बिना कंडीशन चेक किए, सबसे पहले वो परफॉर्म करता है, सबसे पहले वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, देन अपडेट करता है, देन चेक करता है, या फिर अपडेट बाद में करता हो या कुछ भी करता हो, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि पहले वो इनिशियलाइज करता है, फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, देन कंडीशन चेक करता है। और ऊपर वाले दो में क्या था, फॉर लूप और व्हाइल लूप में इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देन अपडेट करेगा। तो जो मैंने पहले ऊपर बात की कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड आइटरेशन। सो हम फिर से एक सवाल आता है करके कि हम लोग लूप्स को क्यों यूज करें, जैसे कि बहुत सारी टास्क है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड ही हमको प्रिंट कराना है, अगर किसी को हमको सेंड करना है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड अगर उसने कहा है कि 10 बार प्रिंट कराना है, तो एक नॉर्मल प्रोग्रामर क्या करेगा, उसको 10 बार प्रिंट का सिंटैक्स वगैरह जो भी लिखा लिखा दिखेगा एंड देन उसको एक्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर क्या करेगा, एक लूप में डाल देगा जो कि उसको वही काम करके देगा जो दूसरे प्रोग्रामर ने 10 लाइन के कोड में लिख के दिया था। और जो मतलब एक गुड प्रोग्रामर रहेगा वो लूप्स के बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग है, उसी काम को वो कम टाइम में और कम लाइन्स ऑफ कोड में कर देगा, यूज करके प्रोग्रामिंग स्किल्स को। एंड देन इस ये कोड का लेंथ घटाता है एंड डायनेमिक ऑपरेशन, ये तो चीजें हैं जो कि फॉर्मेलिटी की तरह है, लेकिन मेन मोटिव क्या है, जो आइटरेटिव प्रोसेस है, जो इसको हमको बार बार करना है, जैसे कि असाइनमेंट्स होते हैं हमको कि जो बार बार करना है, बार बार करना है, लेकिन भले उसका कुछ ऐसा कुछ आउटपुट ज्यादा ना निकले, तो आइटरेटिव प्रोसेस को लूप्स में डाल दिया जाता है। और फिर अगर आपको जावा लूप्स के बारे में और सी प्लस प्लस लूप्स के बारे में अगर और कुछ जानना है, तो यहाँ पे लिंक्स वगैरह प्रोवाइड की गई है। देन इसके बाद आता है कि स्ट्रिंग एरे। एरे और स्ट्रिंग को हमने तो पढ़ लिया, लेकिन हम लोग उसके एक हर एक कैरेक्टर और जो हर एक एलिमेंट और ग्रुप लेटर होते हैं उसको एक्सेस कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको सूडो कोड में प्रोवाइड किया है, जैसे कि हमने ऊपर देखा करके कि कैसे लूप चला जाता है, तो लूप्स के सिंटैक्स तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ इसके लिए सूडो कोड प्रोवाइड किया है, जैसे कि और आप ये पूछोगे करके कि कि जैसे कि कोई भी एक स्ट्रिंग के एलिमेंट है या कैरेक्टर है या फिर कोई लेटर है या एरे के कोई एलिमेंट है, उसको एक्सेस कैसे कैसे किया जाएगा, तो हम लोग आगे वो बात करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे इस बात की कि कैसे ट्रैवर्सल किया जाता है थ्रू, जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया। तो इनिशियलाइज करने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक चीजों की डेटा सेट की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, तो हम लोग लेके जो भी स्ट्रिंग रहेगी तक ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करते समय क्या करेंगे, तो करना रहेगा, वो कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया एंड देन उसके बाद हम लोग n-1 तक हम लोग ने लेंथ के ट्रैवर्स किया एंड देन एलिमेंट को उठाया एंड देन उसको जो भी ऑपरेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है तो हम प्रिंट कर सकते हैं। बट इसमें आता है जावा में एक और टाइप का लूप आता है, जो कि हमें कब यूज करना चाहिए, जब हमको इंडाइसिस से कोई वास्ता ना हो, हमको सिर्फ एक हर एक आइटम को या एलिमेंट को उठाना हो, स्ट्रिंग हो चाहे एरे हो, और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। फिर से मैं कह रहा हूँ, जब हमको इंडेक्सिस से कोई वास्ता ना हो और हमको सिर्फ आइटम को उठाना है या एलिमेंट को उठाना है इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स के, तो हम लोग यूज करेंगे फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप का सिंटैक्स के बारे में हम तो थ्रू आउट द सेशन जो रहेगा उसमें बात करेंगे, लेकिन हम बताता हूँ फॉर ईच लूप करता क्या है। फॉर ईच लूप में एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर जो कि प्रोवाइड है अपने को, जैसे कि अगर स्ट्रिंग हो गया तो स्ट्रिंग एंड देन अगर एरे हो गया तो एरे। तो सबसे पहले हम लोग
एक वेरिएबल, जैसे कि अगर कोई एक इंटीजर एरे है तो हम लोग एक इंट डेटा टाइप को हम इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। फिर हर बार क्या होगा, जब लूप चलेगा ना, तो हर बार फॉर ईच लूप क्या करेगा, उसके हर एक मतलब जो एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट को वो वेरिएबल के अंदर असाइन करते जाएगा। फिर जब वो वेरिएबल के असाइन करते गया तो हमारे पास तो पहले से वो वेरिएबल है, तो हमको जो भी उससे काम कराना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम लोग सब कर सकते हैं। सेम एरे में भी वही होगा। अगर समझो हमको पहले एलिमेंट, अब जब हमें पहले एलिमेंट दे दिया उसने, एरे ने, हमने अंदर गए, फॉर लूप के अंदर गए, एंड देन फॉर लूप के अंदर हम लोग ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे कि प्रिंट करके ऑपरेशन है यहाँ पे, ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड देन उसके बाद अगर हमको प्रिंट करना है, ऑपरेशन करना है, या कुछ को किसी फंक्शन को उसको भेजना होगा, तो हम वो सब बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें कैसा होता है, अगर हमको आइटम के रिलेटेड कुछ वर्क करना है और इंडेक्सेस से कोई वास्ता ना हो, तो फॉर ईच लूप हमेशा यूज करना, अगर जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो। देन उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब कोई भी एक प्रोग्रामर नहीं चाहेगा कि उसका जो ऐप हो या फिर जो भी वेबसाइट हो, वो बहुत डिले में लोड हो या फिर बहुत डिले में फंक्शनिंग करे। जैसे कि मैंने एक बटन दबाया है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी बटन दबाऊं, तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो इमिडिएटली आए या फिर कम से कम टाइम से कम आए। तो हर एक ये प्रोग्राम की या फिर कोई भी एक प्रोसेस की किसी भी एफिशिएंसी हमको निकालनी पड़ती है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। और एक अच्छा पैरामीटर है किसी भी की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी निकालने में। इसके बाद एक और चीज होती है जो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कि ज्यादा जगहों पे इफेक्ट नहीं करती है। तो इसीलिए हम लोग ने इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया, तो हम लोग सबसे इसमें सिर्फ बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। बिकॉज हम लोग एफिशिएंसी और जो उसकी या फिर ऑप्टिमल अप्रोच कहा जाता है ना, जैसे कि एक होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक होता है ऑप्टिमल अप्रोच, एंड जो भी होंगे अप्रोच उनके बारे में। तो एक ऑप्टिमल अप्रोच एक ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे बेटर होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे ऑप्टिमल होता है। बिकॉज हर एक प्रोग्राम या हर एक फंक्शन दूसरे से बेटर तभी होगा जब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताता है हमें, कि एफिशिएंसी के बारे में या कि परफॉर्मेंस के बारे में या कंपैरिजन में यूज होता है। तो हमारे पास 3 टाइप के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के नोटेशंस हैं। तो सबसे पहले होता है एक थीटा, जो कि हमेशा बेस्ट केसेस को कहा जाता है, जो कि हम कभी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है ओमेगा, जो कि लोअर बाउंड, ओमेगा जो कि जो हाँ सॉरी, थीटा जो होता है वो एवरेज के ऊपर होता है, जो कि जो इसको भी हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं। और एक ओमेगा होता है जो कि लोअर बाउंड को करता है। मीन्स अगर एक प्रोसेस वर्क कर रहा है, अगर एक प्रोसेस वर्क कर रहा है, प्रोग्राम वर्क कर रहा है, उससे हम लोग कुछ आउटपुट चाहते हैं, तो वो कम से कम टाइम कितना लगाएगा। या फिर हम लोग एक कोई भी कोई प्रोसेस या फंक्शन वर्क कर रहे हैं, तो वो एवरेज टाइम कितना लगाएगा, हम उस पे कभी नहीं जाते हैं। हमारा एकदम मतलब एकदम क्लियर होता है कि हम लोग वर्स्ट टाइम पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग हर एक जगह पे इस चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है किसी भी चीज़ में। तो अगर हम लोग वर्स्ट केसेस के लिए प्रिपेयर हैं, तो हम लोग एवरेज एंड जो एकदम बेस्ट केस हो सकता है उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल एग्जांपल है कि प्रिंट करूंगा हर एक का इंडेक्स, तो एन ही होगा। बट मैं एक अदर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास ये एक एरे है, ओके। और अगर मुझे एरे में कोई एलिमेंट मेरे को ढूंढना हो, जैसे कि मेरे को 4 ढूंढना हो या 3 ढूंढना हो, 2 ढूंढना हो, 1 ढूंढना हो, तो अभी यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि 4 कहाँ पे, 3 कहाँ पे है, तो यहाँ से तो हम बता सकते हैं। लेकिन जो कि एक प्रोग्राम होता है वो हर एक बार हर एक एलिमेंट को चेक करता है। तो कभी कभी हमारी किस्मत अच्छी हो सकती है कि जो हमारा एलिमेंट है वो पहली इंडाइसिस पे ही आ जाए। जैसे कि हम लोग अगर वन को हमको ढूंढना है कि कौन सा इंडाइसिस पे या कहाँ पे भी है, या फिर ये ढूंढना है हमको कि वन इसमें है क्या। अगर वो पहली पोजीशन पे ही मिल गया, तो उसका क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा। बिकॉज उसने पहले ऑपरेशन में ही या फिर एक सिंगल ऑपरेशन में ही चीजों को ढूंढ लिया। या फिर हमारे पास एक और केस होता है जहाँ पे हमने 5 ढूंढते हो, तो उसके लिए इसको 1 2 3 4 5 5 5 मतलब कि उसका लेंथ हो गया, सो n। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n, मीन्स उसको हर एक एलिमेंट को उसको प्रोसेस करना पड़ा अपने टारगेट को ढूंढने के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n। तो अगर हम लोग देखा जाए तो हर एक एलिमेंट हमारा लास्ट में हो सकता है, बरोबर। पहले होना तो एक बेस्ट केस हो गया, लेकिन हर एक एलिमेंट हम ये सोच चलते कि लास्ट में होगा। तो अगर किसी भी हम लोग एरे में अगर टारगेट एलिमेंट को चूज करते हैं,
तो हम लोग O ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी मान के चलते हैं, ठीक है। तो O ऑफ n क्या हो गया, फर्स्ट केसेस हो गए। जैसे कि हम लोग अभी एरे का लिया तो एक स्ट्रिंग भी हो गया। जैसे कि स्ट्रिंग में मेरे को ढूंढना है कि जैसे कि ये हेलो HELLO, ठीक है। अब मुझे इसमें ढूंढना है कि O है क्या इस स्ट्रिंग में। तो ये हो सकता था कि कुछ ये एक रैंडम स्ट्रिंग हो सकती थी जिसमें O पहले होता, ये बेस्ट केस होता। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि O हमारा लास्ट में है। तो हम इस तरह से कोड लिखेंगे कि हम लोग हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, अगर मिल गया तो वहां पे हम लोग रुक जाएंगे और उसको हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे जिसने हमको कॉल किया था वो ढूंढने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्स्ट केस क्या हो गया कि हमको थ्रू आउट द स्ट्रिंग हमको ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवल करने के लिए क्या होगा, उसका जो लेंथ होगा वो n होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई n। ओके, तो ये होती है वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर किसी को कुछ डाउट अभी कि 3 टाइप में वगैरह कि क्या क्या होते हैं, या फिर मैं ओमेगा या फिर थीटा नोटेशंस को भी एक्सप्लेन करूं। बिकॉज थ्रू आउट द 40 डेज हम लोग कंसर्न रहेंगे सिर्फ थीटा ओ के ऊपर, ओ ऑफ एन जो भी रहेगा हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ के ऊपर हम लोग एकदम फोकस करेंगे। तो अगर किसी को डाउट हो थीटा के ऊपर या फिर ओमेगा के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में या तो फिर डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर एरे के फॉर ईच लूप के ऊपर, या फिर एरे के ट्रैवर्सल, या फिर ये जो फॉर लूप है, वाइल लूप है या डू वाइल लूप है उसमें 0 से n कैसे होता है, और डू वाइल लूप में 1 से n कैसे हो सकता है, उसके ऊपर कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि किसी भी एलिमेंट को, तो वैसे ही हम लोग हमेशा, जैसे कि हमको सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है जिसमें होता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो वहाँ पे हम लोग हर एक एलिमेंट को चूज करते हैं, देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, देन सम अप करते हैं, देन फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। वो होता है एक लेंथी प्रोसेस जो एक एक्चुअल आंसर निकाल के देता है जो कि मोर प्रिसाइज होता है। तो हम उतना ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हमको इतना एबल होना चाहिए या फिर अपने इतना एफी मतलब इतना देख के पहचानने आना चाहिए कि अगर कोई एक कोड लिखा है तो उसकी वर्स्ट मतलब ओ की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई एरे है, एरे क्या है, कॉन्टिजिनियस एलिमेंट का कलेक्शन है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट एक के बाद रखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हर एक के बाद रखा हुआ है। और अगर मेरे को सेकंड नंबर वाले एलिमेंट को उठाना है तो डायरेक्टली मैं बोलूंगा एरे को, एरे मेरे को सेकंड वाला इंडाइसिस का एलिमेंट दे दे। तो जब ये एकदम कंटिन्यूस रखा है तो मुझे रैंडम एक्सेस, जो कि एक देखा आपने उसमें पढ़ा होगा क्या बोलते हैं अपने सिस्टम्स में जिसमें रैंडम एक्सेस फाइल्स होती हैं, तो हम लोग रैंडम कर सकते हैं किसी भी चीज को। ऐसे ही में भी मतलब किसी किसी एलिमेंट को हम टेक्स्ट लिख रहे हो या फिर एक स्टेटमेंट लिख रहे हो और डायरेक्टली आपको वो जो एलिमेंट है प्राप्त हो जा रहा है। तो एक्सेसिंग द एलिमेंट लेता है ऑफ 1 की कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद आता है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च आपने डीएस में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, तो आपको किसी को बाकी लोगों को तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा बताता हूँ मैं। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हमारे पास एक एरे होता है, उसको हम लोग हर बार 20 में से डिवाइड करते हैं एंड देन चेक करते हैं कि बीच का एलिमेंट वो टारगेट एलिमेंट है या नहीं। अगर टारगेट एलिमेंट अगर छोटा होता है तो हम लोग राइट साइड शिफ्ट होते हैं, और अगर टारगेट एलिमेंट बड़ा होता है तो हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट होते हैं। और ये प्रोसेस रिकर्सिवली जब तक हमको टारगेट एलिमेंट ना मिल जाए या फिर हमारा जो लास्ट टू लास्ट एरे बचेगा वो उसकी लेंथ एकदम 1 से कम ना हो जाए, तब तक हम लोग इसको ट्रैवल कर मतलब रिकर्सिवली ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे। तो जो बाइनरी सर्च है, इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं या जिस टाइप के जो लूप होते हैं उनको लगता है लॉग ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी। देन मैंने जो पहले बात की आपकी लीनियर सर्च वाली, हाँ, तो उसमें कैसे कहा था मैंने कि कोई भी हर हम लोग क्या मांग चलते हैं कि हर एक एलिमेंट जो हमारा है वो एकदम लास्ट में होगा, बरोबर। तो उसमें लीनियर टाइम जो लीनियर सर्च होता है उसमें टाइम लगता है ओ ऑफ एन का। और वहीं पे ये भी सर्चिंग जैसे कि ये भी लीनियर सर्च एक होता है, सर्च बाइनरी सर्च होता है। तो बाइनरी सर्च मोर एफिशिएंट है फ्रॉम लीनियर सर्च बिकॉज वो लॉग ऑफ एन की करता है। हम बाद में एक ग्राफ भी देखेंगे जहाँ पे बताता रहेगा कि इनपुट के साइज बढ़ते समय कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है चीजों की। तो आपको पता चलेगा कि बाइनरी सर्च क्यों एफिशिएंट है। देन उसके बाद कुछ और डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे कि या फिर
सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स आते हैं, जैसे कि मर्ज सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया, या फिर नेस्टेड लूप्स हो गए। जैसे कि एक लूप है, एक लूप के अंदर एक और लूप है। जैसे कि अगर मैंने पहले लूप के लिए चालू किया, तो जो अंदर वाला लूप है उसके लिए मैं 1 टू n तक मैं वर्किंग करूंगा। देन सेकंड आइटम के लिए मैंने चालू किया तो मैं 1 टू n तक वर्किंग करूंगा। तो इसमें क्या होता है, हर एक आइटम के लिए ट्रैवर्स जा रहा है तो ये n स्क्वायर करता जा रहा है। मतलब अगर आप कभी भी देखो ना लूप के अंदर लूप हो तो सीधा ही n स्क्वायर बोल देना। और जैसे कि फिबोनाची तो आपको शायद पता ना हो, लेकिन फिबोनाची हम साइड रखते हैं, हम रिकर्सिव देखते हैं। जैसे कि हमें हमें जब भी कभी भी चॉइस हो चीजों की, जैसे कि हमको कभी दो चीज दी गई हो और उसकी चॉइस हो और हमको दोनों में से देखना है। जैसे कि एक बॉक्स दिया गया है आपको, ठीक है, उसमें आपको बेस्ट एलिमेंट्स निकालने हैं। मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और उसकी बेस्ट वर्थ हो या फिर उसका बेस्ट प्रॉफिट निकले। तो जब भी हमारे पास चीजों में ऑप्शन होता है ना, तो हम लोग चीजों को फंक्शन में रिकर्सिवली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, जैसे कि अगर 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से ही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। जैसे कि 2 ऑप्शन है तो 2 ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, और अगर 3 है तो 3 ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। उसके बाद है परमुटेशन जनरेशन। जैसे कि हम लोग कुछ भी रैंडमली जनरेट करें चीजों को, जैसे कि हमने 12th में या 11th में पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसमें परमुटेशन क्या होता है, चीजों को लिया जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, तो पहले प्लेसेस में हमने सारे एलिमेंट डाल दिए, दूसरे प्लेसेस में हमने सारे एलिमेंट डाल दिए, तीसरे प्लेसेस में हम सारे एलिमेंट डाल दिए। लेकिन वो एलिमेंट डालने का और उसके कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में जो टाइम लगता है वो लगता है n फैक्टोरियल। उसके बाद आता है विजुअलाइज करना। जैसे कि अगर हम लोग छोटे ऑपरेशन में काम करते हैं, जैसे कि हम लोग अपना कॉलेज का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं वगैरह लैब्स वगैरह में, तो हम लोग बहुत छोटे बेसिस पे काम करते हैं। तो जैसे कि अभी ये 1 है, 10 है एंड 100 है। अगर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं तो हमको स्टार्टिंग में फर्क नहीं पड़ता है, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में तो फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे तो मैंने छोटे लिए हैं, फिर भी चीजों में बहुत सारा फर्क दिखता है। तो देखो जैसे कि अगर हमने एक इनपुट लिया तो लॉग ऑफ 1 में भी 1 ही आएगा, लॉग ऑफ n में भी 0 हो गया, देन n में ये एक्चुअल में मतलब अप्रोक्सीमेट लेके करके 0 हुआ है, लेकिन 0 नहीं होगा, 1 ही होगा मोस्टली। एंड देन ये भी देखो 0 का, ये मीन्स ऐसा है कि मतलब एवरेज लिया होगा, अप्रोक्सीमेट लिया इसलिए 0 हो गया है। 1 है और 2 है। लेकिन जैसे कि हम लोग थोड़ा पावर बढ़ाते हैं, जैसे कि थोड़ी वैल्यू बढ़ा, जैसे कि 100 की हमने, तो हम लोग को सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखने को मिलता है। जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये डायरेक्टली 100 हो रहा है। ये देखो 664 हो रहा है, ये 10,000 हो रहा है, और ये e टू द पावर 30 हो जा रहा है डायरेक्टली। तो ये डिफरेंसेस हमको सिर्फ एक बड़े जब हम लोग इनपुट साइज लेंगे तभी हमको दिखेगा। छोटे इनपुट साइजेस में हम लोग को इतना ज्यादा डिफरेंस दिखता है। तो कि कैसे इनपुट साइज के अकॉर्डिंग ही बढ़ता रहता है। जैसे कि O ऑफ 1 है, इनपुट साइज कितना ही बढ़ने दो उसको एक ही ऑपरेशन लगेगा। लॉग ऑफ n है, इनपुट साइज बढ़ने दो तो लॉगरिथमिक चेंज होता है। O ऑफ n में लीनियर चेंज होता है, जितना इनपुट साइज बढ़ेगा उतना टाइम बढ़ेगा आपके ऑपरेशन का। देन फिर n log n, देन x स्क्वायर हाइपरबोलिक के लिए जाता है, एंड देन 2x, देन n फैक्टोरियल। ये सारे रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हमारे फंक्शंस वर्क करते हैं। देन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको मतलब और एक्सप्लोर करने को मिलेगा चीज़ों को। उसके बाद आते हैं एरे स्ट्रिंग मेथड्स। जैसे कि मैंने ऊपर बात किया था कि एरे में लेंथ होता है वगैरह होता है, तो इसके प्रॉपर्टीज होती है फंक्शन की, तो मैं कहा था कि बाद में बात करूंगा, तो वही चीज़ आ गई है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने ये इसमें प्रोवाइड किया आपको लिंक, अगर और एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे आप एरे के एक्सप्लोर कर सकते हो। देन हर एक एरे में एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ की, जो आपको बताएगी कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने लेंथ है, ठीक है। देन उसके बाद आता है टू स्ट्रिंग। अगर किसी एरे को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग बनाना है हमें, तो टू स्ट्रिंग की हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, ये उसका सिंटेक्स है। एंड देन सॉर्ट फंक्शन होता है। सॉर्ट फंक्शन अब जो भी मोस्ट ऑफ द जावा में मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जो कि मैंने यूज किया जो कि जावा है, उसमें मर्ज सॉर्ट यूज किए जाते हैं किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए, बिकॉज मर्ज सॉर्ट सबसे एफिशिएंट वे है किसी भी चीजों को सॉर्ट करने का। जैसे कि इसमें एक एरे के फंक्शन दिया हुआ है जैसे कि एरे डॉट सॉर्ट, तो आपकी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको उसमें आगे पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे, एंड देन आप सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है बाइनरी सर्च। एंड बाइनरी सर्च वही हो जो कि मैंने बताया था, और इसको हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए अभी आगे चलते हैं।
देन एरेस कॉपी ऑफ, अगर समझ लो आपके पास एक एरे है, ठीक है, अगर आप एक एरे है, 2 मिनट, तो अगर आपके पास कोई एक एरे है और उसका आपको डुप्लीकेट बनाना है, तो आप कॉपी ऑफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। ऐसे और भी कई सारे फंक्शन हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसके लिए आपका एक फॉर्मेट में प्रोवाइड, और ये जो वगैरह है ये मैंने नरेंद्र के मन जो तक तो उसके एक्सपीरियंस यहाँ पे थे, जो कि आपको थ्रू आउट मतलब डीएसए के टाइम पे आप कोई भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यूज आएंगे। वैसे स्ट्रिंग के फंक्शन किसी भी एलिमेंट कैरेक्टर है, तो मेरी सारी, हेलो हेलो हेलो, Hello. Yes, you are audible. हाँ यस है, हाँ। तो अगर मेरे को कोई भी अगर किसी भी लेटर को अगर मेरे को एक्सेस करना है, तो मैं कैर एट फंक्शन का यूज करूंगा, जिसका सिंटेक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे किसी भी मतलब फंक्शन को यूज करना है। एंड देन सब स्ट्रिंग ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग आपको रिट्रीव करके देता है। देन कंटेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो आपको किसी भी, अगर आपने सब स्ट्रिंग दिया या किसी भी कैरेक्टर दिया है, तो आपको ढूंढ के ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा कि वो है या नहीं है। एंड इक्वल फंक्शन एंड इक्वल इग्नोर, ये हम बाद में बात करेंगे। इक्वल फंक्शन एक एसेंस देता हूँ कि क्या करता है। इक्वल फंक्शन सिर्फ कंपेयर करता है कि दो स्ट्रिंग आपस में इक्वल है, इसका भी सेम आउटपुट आता है कि ट्रू या फॉल्स। देन लोअर केस होता है, अपर केस होता है, जो कि पूरी स्ट्रिंग को लोअर में अपर में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन ट्रिम फंक्शन होता है जो कि अगर स्टार्टिंग में या एंड में आपके स्ट्रिंग के अगर स्पेसिस हैं, वाइट स्पेसिस हैं, तो उसको ट्रिम कर देता है। बाकी सब चीजें आप बाद में यूज देख सकते हो, जैसे कि अगर इंडेक्स ऑफ, अगर आपने किसी कैरेक्टर दिया है और उसका चाहते हो कि उसका इंडेक्स क्या है, तो आप इस फंक्शन से यूज कर सकते हो। और ये सब चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और ऊपर से आप यहाँ पे लिंक दिया हुआ है स्ट्रिंग का, और भी आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो आगे जाके। देन सबसे थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये स्ट्रिंग बिल्डर इन जावा। ये मोर स्पेसिफिक टू जावा लैंग्वेज है। तो जो स्ट्रिंग बिल्डर एक मतलब एक वरदान है जावा को, जो कि चीजों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव करता है। इसका मैं बाद में आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। तो समझ लो जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग समझ लो आपके पास एक पेपर का बड़ा पीस है, आपने उसमें से एक टुकड़ा फाड़ा, उस पर आपने कुछ लिखा। अगर आपको उसमें कुछ और ऐड करना है, मतलब स्केल अप करना है, तो आपको एक नया पेज का टुकड़ा फाड़ना पड़ेगा उसमें और चीजों को ऐड करने के लिए। और डाउन का तो मैं एग्जांपल इसमें नहीं दे सकता, लेकिन आप समझ सकते हो कि मतलब स्ट्रिंग कैसा है। इम्यूटेबल मैंने बात की थी, तो अगर एक बार मैंने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया कि किसी भी साइज से, तो वो उतना ही रहता है, इसको आप स्केल अप एंड स्केल डाउन नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको स्ट्रिंग बिल्डर ऐसी पावर प्रोवाइड करता है, वो इस तरह है जैसे कि एक व्हाइट बोर्ड। अब व्हाइट बोर्ड क्या है, एक इनफाइनाइट व्हाइट बोर्ड है, जिसको आप बढ़ा भी सकते हो, आप उसको घटा भी सकते हो, उसकी चीजों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। तो जब भी आप स्ट्रिंग करते हो ना, यूज करते हो ना, तो एक व्हाइट बोर्ड की तरह, चीजों को मिटाना, चीजों को फिर से लिखना, उसकी तरह होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है हेलो के नाम से, और अगर उसमें मैं कोई भी चीज ऐड करता हूँ, जैसे कि वर्ल्ड ऐड किया, तो यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग जनरेट होगा, एंड वो स्ट्रिंग पॉइंट करेगा आपके नए वेरिएबल पे। तो मीन्स क्या, हर बार एक स्ट्रिंग न्यू क्रिएट हो रहा है अगर आप कुछ भी उसमें छेड़खानी करते हो तो। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, एक म्यूटेबल है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, स्केल अप, स्केल डाउन, डिलीट, रिमूव, रिप्लेस, एनीथिंग। सो तो इसको कब यूज किया जाता है, आपको एक देखना पड़ेगा। जैसे कि एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग आप कब यूज करो, जहाँ पे आपको मिनिमम एडिट्स हो, मतलब कि उसी, जैसे कि अभी आपने देन लेटर्स की स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया, तो उसमें आपको एक दो लेटर का चेंजेस करना हो, या फिर इसमें चीजों को रिप्लेस करना हो, तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आपको डायनेमिक चीजें, जैसे कि फ्रीक्वेंट चेंजेस, जैसे कि कभी आपका स्ट्रिंग की लेंथ हो जाती है 100, का आपकी लेंथ हो जाती है 1, कभी आपके लिए स्ट्रिंग की लेंथ हो जाती है 50, तो आप स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करना, ये मैं प्रेफर करता हूँ। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग बिल्डर्स के फंक्शन, जो कि अगर मैंने कहा जो ऐड करने का, तो ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन होता है। किसी भी लेटर को एक्सेस करने के लिए कैरेट फंक्शन होता है,
किसी भी कैरेक्टर को या फिर रेंज ऑफ कैरेक्टर को या सब स्ट्रिंग को डिलीट करना है तो ये होता है, एंड देन पर्टिकुलर कैरेक्टर को यूज करना है, डिलीट करना है तो ये होता है। एंड देन इंडेक्स ऑफ, अगर आपने कोई हेलो है, हेलो में आपको एल ढूंढना है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करेगा, आपको जो उसका फर्स्ट ऑकरेंस रहेगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड आपको उसकी इंडेक्स दे देगा। और अगर आपको लास्ट चाहिए कि एल का इंडेक्स क्या है तो आप लास्ट इंडेक्स आप यूज कर सकते हो। देन लेंथ होता है जो कि आपको बताएगा कि उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। अब ये चीजें तो बहुत सारी हैं, तो आप ये बाद में देख सकते हो। इसमें एक मेन चीज है जो कि कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी क्या है, अभी हर बार तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर थोड़ी ना रिसाइज या रीसअप करेगा, या तो फिर ऐसी रिसाइज नहीं करता है हर बार। ये इस मतलब मेथड को लेके चलता है, मतलब ये इस मोटिव को लेके चलता है कि एक बार या बड़ा मैं साइज को इनिशियलाइज कर दूं, जिसको कहते हैं कैपेसिटी। अभी समझो तुम लोगों ने हेलो इनिशियलाइज किया किसी वेरिएबल को हेलो से, तो वो क्या करेगा कि आपको 100 साइज की या किसी भी साइज की आपको इनिशियलाइज करके देगा, फिर आप उसमें चाहे कितना भी बड़ा छोटा करते रहो स्ट्रिंग को। तो एक कैपेसिटी फंक्शन है जो आपको यूज कर सकते हो जानने के लिए कि उसकी टोटल कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना वो लेटर्स मतलब अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और जो लेंथ मेथड है वो एक्चुअल लेंथ बताएगा पूरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। इसका एक कंपैरिजन देना चाहता हूँ मैं जो स्ट्रिंग और उसके बीच में होगा, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर के बीच का कंपैरिजन। तो इसमें एक मेरा लीड कोड का सोल्यूशन है जिसमें आप देख सकते हो। ओके 2 मिनट रुकना, मैं फटाफट ये करके आता हूँ। हाँ, तो ये था वो सबमिशन लिंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये जो सोल्यूशन यूज किया है उसमें सोल्यूशन में मैंने इंस्टॉल किया है स्ट्रिंग बिल्डर। तो इसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो कि क्या क्या ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाई ऑफ एन मीन्स मेरे को लीनियर टाइम लग रहा है, और मेरी रन टाइम कितना लगा हुआ है 17 मिली सेकेंड। और उसी जगह पे मैंने एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया था अपने कोड को लिखने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया था, तो वहाँ पे मेरे जो प्रोसेस है उसका टाइम लिमिट एक्सीड हो चुका था। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग बिल्डर एक एक्स्ट्रा पावर देता है कि आप टाइम आपकी बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। तो यही एग्जांपल था कि स्ट्रिंग बिल्डर क्यों अच्छा है या क्यों एफिशिएंट है स्ट्रिंग से। देन उसके बाद आता है कि लिंक लिस्ट क्या है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि एरे होता है। तो एरे में क्या होता है, मैंने क्या बताया कि एक बार इनिशियलाइज होता है और कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं। अब जैसे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, वैसे ही एरे में आप चीजों को लेंथ बढ़ा नहीं सकते हो। तो वैसे ही हमें इसमें इंट्रोड्यूस हुआ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है, रैंडम मेमोरी लोकेशंस होती हैं। रैंडम मेमोरी लोकेशन होती है जो कि एलोकेट की जाती है हम लोग को जब हम लोग को कभी भी जरूरत होती है, या हम जब भी कभी भी लिंक लिस्ट के मेथड को कॉल करते हैं। तो जब भी हम लोग उसमें चीजों को ऐड करेंगे तो हमको एक रैंडम स्पेस मतलब जनरेट करके दे दी जाएगी, एंड देन जनरेट करने के बाद वो हमको एलोकेट हो जाएगी, एंड देन हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्केल अप हो गया। और अगर हम किसी भी नोड को डिलीट करते हैं तो स्केल डाउन हो जाता है। तो लिंक लिस्ट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा जो कि हमको स्टोर कराना है, और ये होता है एक नेक्स्ट। बिकॉज मेमोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा रैंडम है, तो इसके लिए हमको जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको उसके जो एड्रेस है उसकी जरूरत पड़ेगी एक्सेस करने के लिए, अगर हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर। तो इसके लिए नेक्स्ट एक पॉइंटर होता है, जो कि सी पढ़ के आया तो उसको पता होगा कि पॉइंटर का मतलब क्या होता है। पॉइंटर क्या करता है, सिर्फ एक एड्रेस का जो डेटा है उसको पॉइंट करता है, एड्रेस का लोकेशन या डेटा को पॉइंट करता है। देन दिस इज अ सिंटेक्स। एंड देन यहाँ पे 3 टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं। यहाँ पे लिंक दिया है कि अगर आपको आगे एक्सप्लोर करना है तो सिंगली लिंक लिस्ट होता है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। एक डबली लिंक लिस्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आप यहाँ पे आए
और देन यहाँ पे मूव ऑन कर दोगे तो आप पीछे नहीं आओगे, मतलब टू तो मोशन है लेकिन फ्रो नहीं है। तो डब्ल्यू इंग्लिश आपको प्रोवाइड करता है टू एंड फ्रो मोशन। बट अगर आप एंड में पहुंच चुके हो और आप जाना चाहते हो फर्स्ट पे, तो आपको मतलब पूरा जो लिंक लिस्ट है उसके सारी नोट्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, जो इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है लिंक लिस्ट का। लेकिन जो सर्कुलर लिंक लिस्ट से आप प्रोवाइड, जैसे कि ये लिस्ट का प्रॉब्लम आप लिंक लिस्ट में solve सभी लिस्ट का प्रॉब्लम जो फ्रॉम फर्स्ट आने के बाद करती है एंड देन वन नोट टू अदर नोट जाने को, और अनदर नोट टू जो वन नोट थी आपको हेल्प करती है। ये कुछ सूडो कोड है, उसके बदले हम लोग सीधा उसके ठीक थोड़े उस पे जाते हैं कि कैसे वर्किंग करते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा आपको समझने में। हम्म। अगर किसी भी अगर हमको थ्रू आउट ट्रैवल करना है, जैसे कि हेड से एंड तक ट्रैवल करना है, तो ट्रैवर्स कैसे हो जाता है? फर्स्ट नोड पे गया, देन नेक्स्ट को लिया, सेकंड नोड पे गया, नेक्स्ट लिया, थर्ड नोड गया। क्योंकि नेक्स्ट जो है वो पॉइंट कर रहा है इसकी लोकेशन को, तो नेक्स्ट एक पॉइंटर है जो कि यूज होता है लिंक लिस्ट के अंदर। ओके, एंड देन अगर हमको किसी भी पॉइंट को, अगर किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना है, किसी भी एलिमेंट को चूज करना है या फिर उसको ग्रैब करना है, तो हम कैसे करते हैं? हम लोग सबसे पहले एक कंडीशंस लगा देंगे एंड देन ट्रैवल करते जाएंगे फ्रॉम हेड टू टेल। तो वो कुछ इस तरह होता है, जैसे कि इस बार हम लोग लोवेस्ट एलिमेंट ढूंढे, तो इसने ट्रैवल किया और लोवेस्ट एलिमेंट को ढूंढ लिया। आपने देखा हेड पॉइंट कर रहा है फर्स्ट वाले नोड को, एंड देन सब हर एक नोड के जो नेक्स्ट वैल्यू है वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रही है। तो इस तरह कुछ ट्रैवल्सल होता है इसके अंदर। एंड देन डिलीट नोड कैसे होता है वो भी देख सकते हैं आप। इसमें देखा आपने कितना अमेजिंग है। अगर समझ लो हम लोग किसी एरे को किया है, तो एरे में क्या होता है कि अगर किसी वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं तो वो लोकेशन वहीं पे होती है, और उसके आगे हमको हमेशा एरे तो है कि हटा दी, जो प्रीवियस एलिमेंट है उसको बाद वाले एलिमेंट से लिंक कर दिया। अगर हमको किसी भी जगह पे इंसर्ट करना है, ये सबसे मेन प्रॉब्लम थी जो एरे हमको नहीं देता था, कि मतलब डायनेमिकली स्केल अप एंड स्केल डाउन। तो इंसर्ट में एरे में क्या होता था, अगर हमने डाला है किसी एलिमेंट को डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते थे, बिकॉज या फिर हम लोग किसी इंडेक्स डाल दिया तो सीधा वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा और जो प्रीवियस एलिमेंट था वो लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन लिंक लिस्ट ने हमको क्या एक पावरफुल मतलब पावर दी, वो हम यहाँ पे देखते हैं अभी। हम्म। तो आप देख सकते हो कि सेकंड एलिमेंट कितनी अच्छी तरह से इंसर्ट हो गया बिना चीजों को छेड़खानी किए, और कितनी अच्छी तरीके से सेकंड एलिमेंट इंडेक्सिस पे आ गया और सारी चीजें शिफ्ट हो गई आगे की तरफ। हाँ, तो ये कुछ इसके पार्ट थे। देन हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। हाँ, की एप्लीकेशन। अब देखो इम्प्लीमेंटिंग स्टैक एंड क्यू एंड ग्राफ का आपको कोई जरूरत नहीं जानने की, ये सब इंटरनली वर्किंग होता है तो वो आपका कंपाइलर है वो देखेगा। लेकिन सबसे हमारा जो मेन पार्ट था इसको जानने का, वो था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, स्केल अप करना हो, स्केल डाउन करना हो, लिंक्डइन आपको सब प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके बाद एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया जो कि एरे लिस्ट है, जो इसमें थोड़ा सा और पावर ऐड कर दिया, जो कि एरे लिस्ट। एरे लिस्ट भी मोस्टली इसकी तरह है, रिसाइजेबल है। बट अगर समझ लो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया लिंक लिस्ट में, अगर मेरे को किसी भी चीजों को ये करना है, ट्रैवल या लोवेस्ट फाइंड करना था, तो इसमें कैसा हुआ कि मैं स्टार्ट पे आया, देन गया आगे गया आगे गया आगे गया। या फिर मेरे को किस में भी अगर एक्सेस करना है किसी भी एलिमेंट को, कोई भी इंडाइसिस पे है, तो मुझे कैसा करना पड़ा, ट्रैवल करना है थ्रू आउट द लिंक लिस्ट। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। एरे लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस में आप कोई भी एलिमेंट को कहीं से भी उठा सकते हो विथ ओ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी। देन आपको इसके लॉजिक, इसके मेमोरी मैनेजमेंट में कोई भी आपको बात नहीं लिखनी है। ये आपको डायरेक्ट इनबिल्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एंड देन और ये फ्लेक्सिबल ऑपरेशन कर सकते हो, इसमें चीजें इसकी सारी ऑपरेशंस के लिए सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ऐड फंक्शन, रिमूव फंक्शन एंड बहुत सारे फंक्शंस है जो आपके हम बाद में बात करेंगे इसके लिए। तो आप छोड़ो और सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो कि ये क्या करता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। रिसाइजिंग करता है, रैंडम एक्सेस देता है, फ्लेक्सिबल ऑपरेशन करता है, जीरो बॉयलर प्लेट होता है। अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट।
अब एरे लिस्ट में क्या है, डायनेमिक एरे है जिसमें चीजें एक्सपांड होती हैं एंड देन श्रिंक होती हैं। लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक्ड नोड्स होते हैं जो कि ऐड या डिलीट किए जाते हैं एक्सपांड के लिए एंड श्रिंक के लिए। अब हमने जो एक बात की थी कि रैंडम एक्सेस, अब जब रैंडम एक्सेस होने की वजह से एरे लिस्ट में का जो एक्सेस स्पीड हो जाती है वो सबसे ज्यादा फास्ट हो जाती है, जो कि O ऑफ n हो जाती है। लेकिन लिंक लिस्ट में अगर आपका एलिमेंट लास्ट में है तो आपको पूरा ट्रेवल करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को। तो आप कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे क्या हो जाती है, O ऑफ n हो जाती है। एंड देन इंसर्शन इंसर्शन में आपको एरे लिस्ट थोड़ा स्लो होता दिखेगा और लिंक लिस्ट थोड़ा फास्ट होता दिखेगा। बिकॉज जब हमने एक लिंक लिस्ट का देखा था यहाँ पे, अगर हमको कहीं पे भी इंसर्ट करना है, डिलीट है, अगर हमको कहीं पे भी इंसर्ट करना है चीजों को, तो हमें किसी भी मेमोरी लोकेशन को शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा लिंक लिस्ट क्या करेगा, हमको एक रैंडम लोकेशन प्रोवाइड करके देगा एंड देन यहाँ पे डाल देगा, और वहाँ पे क्या होगा, चीजें अपने आप ही शिफ्ट होती दिखेंगी, सिमुलेशन में दिखेंगी, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होता। और आराम से हमारा जो एलिमेंट है उस इंडाइसिस पे आ जाता है। लेकिन एरे लिस्ट में क्या होता है, चीजों को शिफ्ट एक्चुअली में किया जाता है, इसीलिए वहां पे O ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अब मेमोरी एलोकेशन में ये हाई है बिकॉज इसमें कोई भी एक नेक्स्ट पॉइंटर नहीं होता, और इसमें मेमोरी एलोकेशन की लो है बिकॉज में एक पॉइंटर की जरूरत होती है हर एक नोड के साथ। इसके लिए इसमें जो एफिशिएंसी है मेमोरी की, एरे लिस्ट में हाई है और इसमें लो है। सो अब ये बात आती है कि हमको एरे लिस्ट का भी यूज करना है, लिंक लिस्ट का भी यूज करना है। अगर हमको बहुत जल्दी जल्दी चीजों में परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, तो अगर फ्रीक्वेंटली मॉडिफिकेशन है, एक्सपांड है, श्रिंक है, तो लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए। और अगर फिर हमको रैंडम एक्सेस करना है, फ्रीक्वेंटली चीजों को यूज करना है, फ्रीक्वेंटली चीजों को एक्सेस करना है, चीजों को रिप्लेस करना है, कुछ भी चीज करना है, मीन्स रिप्लेस, डिलीट नहीं, हाँ, रिप्लेस, या कुछ चीजों को कहीं पे सेट करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एरे लिस्ट यूज करेंगे। देन हाँ, इधर भी वही बातें लिखी हुई जैसे कि यूज केस आती है, लेकिन वही बातें लिखी हुई यहाँ पे, रैंडम एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस क्रिटिकल, एंड जब फ्रीक्वेंट इंसर्शन डिलीशन होता है तो लिंक लिस्ट यूज। एंड देन कुछ मेथड्स हैं, और एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट की तरह वेक्टर्स होते हैं सी प्लस प्लस में। अगर उसके बारे में आपको एक्सप्लोर करना है तो उसके लिंक्स प्रोवाइडेड है, और उसके एग्जांपल्स भी प्रोवाइडेड हैं लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट के लिए। एरे लिस्ट के ऊपर से लिंक लिस्ट के ऊपर है, और एरे लिस्ट के यहाँ पे एग्जांपल्स के लिंक दी हुई है। एंड देन यहाँ से नरेंद्र आपके साथ कैरी ऑन करेगा और बताएगा स्टैक और बाकी एसेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो नरेंद्र, over to you. Yes, Sanjay. Am I audible? Sanjay, hello? हाँ हाँ हाँ, Okay. कंटिन्यू। Let me share, or you will continue sharing. I'll share the screen. You stop. Is the screen visible to all? Yes, it Yes. is visible. Okay. Okay. See, there's not enough time now, but I want this session now to be very interactive. I don't want any small comments are there and something. अगर कुछ हो रहा है तो डायरेक्ट बोलो, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सो अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्टैक क्यू एंड अदर स्टफ. So these things may sound unfamiliar to second year students. So it is, you just take the essence. We will talk about them detail in the next days. First and for third year we can have a revision for this. So just take this as a revision, and I'll be a little faster. So let's see. First, I have stack. So it is a linear data structure. First of all, we all have seen all these linear data structures from strings, arrays, and all. So this is a linear data structure, but this is an essential data structure which has an abstract concept in it. कि मतलब एक कोई कॉन्सेप्ट पकड़ी है और उस कॉन्सेप्ट पे हम बिल्ड करते जा रहे हैं और एक डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो दिस वर्क्स ऑन द LIFO concept that last in first out. So whatever element is coming in the last in this stack will go out first. There is
and cool animation I would like you to see. I guess here. Okay. Yeah, this is from W3. You can see these stacks. Now there are different methods. Here is the push method where you can put things in the stack, and pop method just removes the top element. So as you can see, there is a container-like structure, and you are putting elements and data one by one on to each other. So whenever we push, it becomes the top of the stack, and whenever I start pushing, there is some limit, and after that I cannot push. It is called here you can see, I guess, yeah, it is full method. Sometimes it is some languages have capacities, and is full method is there for that. And when to remove the elements, you pop the elements. Now the you pop the elements and push the elements from the same side. This is called single side push and pop. So you pop the elements, and you reach an empty queue which says is empty, and there is peak method which tells the top element. So what I want you to see is that take the essence, like it works on, first of all, the LIFO principle, as I said: insert and remove from the one end only, that is single end operations. And it can have a fixed state, fixed size, which has capacity, as I said, and it can be of dynamic size. Many languages have dynamic sizes. We can implement these with linked list and all. So stack works on LIFO principle, just to be clear. Now, next applications that we will see in expression evaluation, like postfix and prefix evaluation expression. I guess in day 13 or 14 we'll start it. So, and there is function called internally. OS uses this kind of this stack calls. There is call stack or function calls. It happens by storing the execution context in the call stack. Then there is undo redo methods and backtracking algorithms. We have, I guess, DFS works on this principle. So this is how stack works, first of all. You can see the implementation in C++ and Java and the methods here. I'll go for the next one. Yeah, queue. Queue is another linear data structure. It works on the FIFO principle, first in, first out. So first element that is added will be removed first. That's it. So you can take an example of standard queue of people waiting to be served for bill receipt or something. So we can have people waiting for it, and the first person who goes in the queue will come out of the queue with the receipt order. So the key principle is, first of all, it works on the FIFO principle, first in, first out. Then it has front and rear ends. Now in stack, there was only one end where we were pushing elements and popping elements from the same side. But here we are doing it from two different sides: the rear side and the front side. Front side we push the element, and rear side we pop the element or dequeue the elements. There is something called size of the number of elements there are in the queue is the current size. Then there is capacity. Based on your language, it may consist or some dynamicness also. If you use linked list or some other array list for implementation, uh, its basic operations are enqueue, dequeue. I'll take you to the animation, and yeah, here you can see the elements. We enter elements through the backside, and pop elements or dequeue elements from the front side. So again, is empty? It's not, but now it becomes empty. Similarly, size is 0. You can have some capacity there, and after that it will say is full or not. But it's based on your language that you have, that you have different methods and calling names for it. Uh, I'll tell you the applications first of all. So applications are that we use it in the task scheduling. In OS, you will see in task scheduling printer and CPU time. So in those, we use this algorithm. Again, there are something like buffer and CPUs.
In the consumer and resource problem also we use this when there are multiple consumers waiting for a particular resource, like we are waiting for the same printer, then we will use uh, the internal programs use a queue like structure. So till now, is everybody clear with this? I'll ask some questions if you are clear. uh, okay, I have an hmm, okay, first, I'll ask one question. Uh, to implement undo redo operations, which in the text editor, what we use? Stacks. I didn't listen. Can you repeat? Stack data type. Yeah, correct, correct. Okay, another question I have. Um, if you have items to be removed from the rear end, then what you use? See, I want this to be interactive, so please, somebody answer. Okay, I guess you may have tricked in the rear part. So it is both that queue and stack have both. They can pop the elements from rear side. Sorry, they can push the elements from rear side. So it was a trick one. कि दोनों sides दोनों ही चल जाएंगे. Okay, I'll continue with this. Now this is a kind of important part. कि hash set क्या होता है? So anybody remembers, recalls the set thing? In mathematics, basically we have sets. We had sets. It was a collection of unique elements. Okay, so similar thing is there. We have sets which have unique elements. That's it. Now sets are unordered. These kind of things are similar. So I'll just go through the properties that they will be first unique elements, then unordered, and they will have dynamic sizes. Now they have something called heap memory, which I don't think you should go after. Uh, but hash set grows and shrinks automatically. That's the thing. But the main important thing is they have efficient lookups. So whenever you want to check that one element is present in the set or not, it happens with the O of one complexity, constant space complexity. So their basic operations are add operations, remove operations, and is empty, clear, it's same. Only one thing is there that contains element. If it checks if the element exists in the set or not, this happens in O of one, and this is the major advantage to it. Again, application happens when there are elements. If there we want to eliminate the duplicates, then it has automatic rejection first of all, and we can check that some element has been there before in O of one, so that is an advantage. Also, we can have set operations like union, intersection, difference. uh, Basically this is different for different languages, so we'll not go into that. Yeah, and for so fast lookup, and yeah, there are three different types of hash sets. This may be asked in theory questions in interviews sometimes. That hash sets, basic hash set is there that I already said. There is something called a tree set, which is implemented using some red black tree. So it maintains the order in the sorted manner. So now, as I said, the sets were unordered, but tree set is ordered. That's the difference. Otherwise, the
whole lookup things and same is the same. There is O of one lookup and all. Again, linked hash set is just similar, only it retains the insertion order. What it means that it is like कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट पहले डाला है तो मुझे अगर मैं ट्रैवर्सल करूंगा हैश सेट पे लिंक्ड हैश सेट पे then I will look at that I will get that first like a queue or you can say so it is like this linked hash set and yeah there are methods and implementation here. I'll not go into that. Let's go for hash map. Okay, a hash map is a data structure that stores key value pair. So it is similar to hash set. Now, what we had is we were having elements in the hash set, but in hash map we have key value pairs. That's the difference. The key value pairs, there is same uniqueness. That key will be unique. Value may or may not be unique. Okay, but it will be unordered. Again, efficient lookup of O of one. Of an average time complexity. Sometimes have login. It is not. It is just too deep for now. There are put, get, and remove methods. Put methods is like this: put key and value in the hash map. There is get through the key. We retrieve the element. We retrieve the element value of that key. Using the key, we get the value, and we have null if there is no key of that interval. Then we can remove the element. We can check if the key contains, if it contains the key, if the hash map contains the key, we can check it. This happens in row of one, and again we can check if it contains the value. This also happens in row of one. These are very important two things. And again is empty size and the clear method. Clear is just going to clear all the elements from the hash map. So that's about hash map. Okay. One more thing that it allows nulls. Okay. We can have a null key, but it will happen only once. And in hash set, we cannot have a null inside hash. So that's a thing that you can remember. Then application of hash map is just it has efficient lookup first of all, as we see. Then storing the relationships, like अगर मैं अपना नाम के मेरे नाम के साथ मेरे एड्रेस है या फिर पिन कोड है, वो सारी चीज़ें मुझे स्टोर करनी through my name. So I can have key of my name and other details as my other details added to an array list or some other data type inside the value. So that is going to be important. Then there is counting frequency. कि अगर कोई भी चीज़ अगर हमें स्ट्रिंग में से कितने कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करना है, then we can have this kind of count. We store the key as the character and we count as the value. This is one very important way, and we will use this very often in DSA. Then there is indexing. The fast indexings are there, and yes, I am not missing anything over. Again, types are the same. Hash map, we have normal hash map. Then tree map is just sorted order. It has sorted order like red back tree or anything. And linked hash set, linked hash map is retains the insertion order. Again, we have methods and implementation in C and C++ here. Uh, can I ask you some questions on this? I guess it's kind of revision to third year students, so I guess they can answer it quickly. Okay. If I want to look up for student's name using their roll number, what is the data structure I should use? Was Hash I map? not clear? Hash map? Yes, hash map. Okay. We will use hash map. We will use the key as the roll number and the value as the name or whatever details you want.
So as I said earlier, it's a good thing to have because it has lookup faster than other things. Uh, Again, another thing that if you want to remove duplicates, what will use? It's kind of easy. Hash set. Did somebody answer? Hash set. Yeah, correct. Hash set. Okay. I guess I'm not that quick कि आपको समझे ही ना. Okay. So let's. This is the final topic for now. कि heap क्या होता है? तो heap is kind of by अगर आप यहाँ पर देखोगे, it's a binary tree. It is a complete binary tree structure with satisfying the heap property. फिर आप पढ़ोगे कि heapify वगैरह भी होता है. So it's kind of hard to understand like this theory part. But I'll say for now, I will say that it has a priority based ordering, and you can get the most priority wala thing or least priority wala thing at the top, and you can traverse through in that priority order. Now, is it different from the ascending and descending order? Yes, because internally, ascending and descending order, we use sorting algorithms and all, which first we have a whole thing as the array, and then we sort with n log n as the best complexity. But in here, what happens is that while inserting, we are inserting it with log n complexity, which is little bad. But while having the elements picking up from the maximum, like whenever we insert an element, it inserts at the position where it has to be in the ascending and descending order. So हम एलिमेंट डालते वक्त ही ascending या descending order को पहले से ही हम देखना है. That's the basic thing. We have insert element, extract element, peak to have removing without removing, look at it. So peak kind of thing we had in Q also. So we have this here also. It happens in O of 1. Again, there is heapify function which converts an unordered array to an heap, which happens in O of n. Now next is delete operation. Also, it takes log n. So deleting any arbitrary element, inserting any element takes log n, and heapifying takes O of n. These are some complexities that are important. Other than that, there are just two types of heaps. First, एक एलिमेंट यहाँ पर जब भी होता है वो ट्री डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, एंड min heap is just having minimum elements at the top, and we as we go down we have elements with a higher lesser priority, or or higher priority. So elements with lesser priority are at the top, and higher at the bottom, that is min heap. And in max heap we have larger elements or higher priority elements at the first, and then as we traverse down we go to the less priority elements, or less elements, smaller elements. So that's the difference. Smallest element at the root, larger element at the root. We have heapify property as same, but it is just reverse key greater at the smaller. Again, priority access, and I'll go through the applications because it's very important. Applications of heap is, first of all, priority queue. Priority queue is similar to queue, very but it is different in the sense that it is not taking the element's value, it is taking the priority of the element, which is a different thing. We can have a comparator operator, we can have a different comparing stream for this operation of prioritization. So एक कंपैरिजन का आप एक फंक्शन बना सकते हो और उस फंक्शन के अबाउट में कर सकते हो. Then there is also heap sort key efficient. It is also an efficient algorithm where we use binary heap to sort the elements. Also, we use this in Jagsa's algorithm, uh, also in the scheduling algorithms, and median finding and other things. We have heaps by vectors also in C++. We can see that implementation here. बाकी थोड़ा heap का theory और आप देख सकते हो यहाँ पर. For now, it's not the place because it's the first prerequisite. So that's the thing. From my side, this is it.
but you can see the our 40-day sheet that we are planning to do 40 days. So this is the whole sheet of 40 days. Our plan is there. We have made it we have handpicked these problems. So you can see we'll share it with the others, all of you, to have look at it. We have mostly lead code and GFG problems only here. So we'll see from tomorrow we will start. Okay. uh, I guess that's it from my side. I'll hand over to the where is going to end this. I mean, So that brings us to the end of the introductory session for the DSA Bootcamp. I'd like to thank you all for joining us today. This bootcamp starting tomorrow, the 21st of December, is designed to enhance your DSA skills, boost placement readiness, and support overall development. We are excited to see your enthusiasm from everyone here and look forward to an enriching learning experience together. Thank you for joining us.